पे यार कोई नहीं, स्ट्रक्चर्ड ही होगा। स्ट्रक्चर्ड कर लो, ठीक है। अगर कोई जी रोल जी। प्लेयर है तो बन जाओ, चलो वैसे तो स्ट्रक्चर्ड में क्वेश्चन, चलो बन जाओ रोल प्लेयर, बेहतर हो जाएगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं, एसएलई और एपिलेप्सी और इस किस्म के, जो कि थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है। कार्डियक थोड़ा प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल बहुत है, लेकिन कुछ टॉपिक्स बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है। लेकिन वही बात है ना कि अगर बिल्कुल वो नहीं आएंगे तो वो बिल्कुल ही आपका स्टेशन पास नहीं हो सकता। उसकी आपको मेन मेन चीजें जरूर आनी चाहिए, और ये अनफॉर्चुनेटली वो चीजें, या मैं तो कहूंगी फॉर्चुनेटली कि नहीं होती ज्यादा हमारे लोगों में। लेकिन हम वी डोंट एनकाउंटर सच केसेस, तो हमें कोई इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं होता इस इनको मैनेज करने का बहुत ज्यादा। ठीक है। मैम ये ऑडिट एंड क्लिनिकल गवर्नेंस ये सब इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे थे मुझसे, मुझसे ना हम्म। स्टेशन पे। सो आई अच्छा वाज अच्छा। ट्राइंग टू, मैं बड़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एग्जामिनर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। ठीक है, So, चलो इस पे भी हम करते हैं। ठीक है, सो वी कैन बिगिन। तबिंदा आप बताओ। तबिंदा ने मुझे बड़ा अच्छा केस भेजा था एक दफा, तबिंदा आप बता दो। जी जी मैम, मैं बताती पेशेंट हूँ। इज हियर जी, बताइए। Okay. Ma'am, it is a diagnosed case of SLE and she came for preconception counseling. Patient has हम्म। some question and asking you, can I become pregnant in next year, next 1 year? Which drug should I stop before becoming pregnant? What complication can occur in pregnancy? What is the हम्म। effect of treatment on fertility? हम्म। बिल्कुल, ये इन्होंने मुझे भेजा भी हुआ है, आप सबके पास व्हाट्सएप में भी है, ये व्हाट्सएप पे शेयर। सो वी कैन बिगिन अगर, हाँ जी Yeah, चलो। सो पेशेंट yeah. इज देयर, आप एक बता दो। चलो पहले ये स्टेशन कर लेते हैं, फिर हम एक जनरल पूरा Okay, एसएलई का केस भी कर लेंगे, सो दैट वी शुड नॉट मिस एनीथिंग इन द टॉपिक। okay, ma'am. ठीक है, Hello. बताओ स्ट्रक्चर्ड तरीके से, Hello. तविंदा बता Okay, दो। ma'am. Hello, I'm Dr. Tabinda and I'm ready for the structured discussion. I have read the scenario. My patient is a diagnosed case of SLE and she came here for the preconception counseling. So, first of all, after mutual introduction and the demographic details, I want to ask my patient about her SLE, that when she was diagnosed with this condition, and what medication she is taking. Is she following her specialist doctors? When she had developed last any flare or hospitalization, uh, and did she talk to her specialist doctor about her conception that she wants to conceive, and did they what did they said to her, and now do she have any current problem like any skin rash, any discoid rash, or any joint pain, any cardiac issue, and any renal problem, and is she taking folic acid as she wants to conceive? What about her previous pregnancies? If she, what about her previous pregnancy? If she has any miscarriages, so what was the mode of that miscarriages? When she, at what trimester she had that miscarriages? Were she taking any low molecular weight heparin or aspirin? If she had miscarriages, so were they medical terminated or surgically terminated? And any testing done on the product of conception? If she had any live issues, so what was the antepartum, intrapartum, and the postpartum complication? And now, when ये क्या हो गया? ठीक रिकॉर्डिंग है, बंद आगे। है? ओ सिग्नल्स वीक है। जी जी। जी तविंदा। हेलो। जी तविंदा, हो, आर यू हियर? आई थिंक तविंदा का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। hello, अच्छा ठीक। जी जी। ma'am, oh, thoda problem. Ma'am, कोई when बात she नहीं। was her last menstrual period, is do she have any contraception? Is she practicing any contraception? And when was the is she up to date on cervical smear? Now, is she following her GP for any other health issue like hypertension, diabetes, or clots in the leg, or any thyroid disorder, any surgeries in the past? Do she have any previous history of venous thromboembolism, or any previous history in her family of venous thromboembolism? Is she allergic to any medications?
and allergic and how's her support at home? Do she smoke? And that's it, ma'am, in the history. ठीक है, Now, so yes, हाँ बताओ आगे, because questions are there. now She's asking you, examination. can I become pregnant? जी. Okay. Now, in the examination, I want to examine my patient in the presence of Chevron. I want to see her BMI, BP pulse temperature, and I want to see. I want to rule out anemia, and I want to examine her breast and abdominal examination, and. Now I'm going to counsel my patient empathetically about her pregnancy. That if she has no flares in the last 6 months, so yes, she can get pregnant, but we have to liaison with the her specialist doctor, and I want to review her medication. If she is on methotrexate or mycophenolate, and she should leave those medications, and the medication which she take in pregnancy, during pregnancy, or during pregnancy are the hydroxychloroquine and azathioprine, and she also can take aspirin from 12 to 32 weeks, and we have to review her medication, and if there is no flares and she is controlled on those medication, then yes, she can get pregnant after taking the green signal from her specialist doctor. ठीक है। अच्छा देखो, बात ये है कि दिस इज अ वेरी, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट सिनेरियोज या डिफरेंट पेशेंट्स। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन, बट वी हैव इसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि आप इसकी पूरी हिस्ट्री लेके पूरा मैनेज करो और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। टाइम बहुत कम है, 4-5 सवाल आपके सामने रखे हैं, 10 नंबर का फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेशन है, 2-2 या 3-3 नंबर हर सवाल के। So first question is कि can I become pregnant in the next 6 months or in 1 year time? तो अब इसके अंदर 2-3 चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट, एनी पेशेंट हु इज हियर विद प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। एक तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में क्या चीजें अहम है, दूसरा किसी भी पेशेंट में बेसलाइन प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, उसके बाद स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम इफ शी इज हैविंग, लाइक इसके अंदर इसको CSLE है, उससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब बहुत ज्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री, यू स्टार्टेड विद द बायोडाटा एंड यू टॉक्ड अ लॉट अबाउट मेनी थिंग्स व्हिच वर ऑल करेक्ट, बट टाइम ड्यूरेशन, अब टाइम ड्यूरेशन तो आपका एक्चुअली हिस्ट्री में खत्म हो गया था शायद। तो इसके अंदर आपने, अगर ये सवाल है, आपने ये सवाल पढ़ लिए हैं और उसके बाद आपको जो जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्विकली आप बेशक बोल दो कि एज और पैरिटी तो मैटर करती है। उसके बाद ठीक है, कुछ तो और ऑलरेडी, लेकिन प्री कंसेप्शन के लिए आपके लिए क्या मैटर कर रहा है कि वो पहले से क्या मेडिसिन ले रही है, उसका इस वक्त SLE का क्या स्टेटस चल रहा है, इज इट ऑल कंट्रोल्ड, क्या उसके अपने, जैसे आपने बोला कि उसके अपने फिजिशियन उसे अलाउ किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि उसकी लेटेस्ट कोई इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं विच आई थिंक यू डिड नॉट मेंशन, जिसके अंदर anti-RO और anti-LA एंटीबॉडीज हैं। क्योंकि अगर कोई पेशेंट anti-RO anti-LA एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि उसके बेबी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है, कोई नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, या बेबी में स्किन फ्लेयर अप डिजीज हो सकती है। सेकेंडली, अगर anti-RO anti-LA पॉजिटिव है तो मदर में ल्यूपस नेफ्राइटिस के बहुत चांसेस हैं। तो इंस्टेड ऑफ द होल लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अ बेसलाइन, किसी भी एंटीनेटल प्री काउंसलिंग, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की हिस्ट्री के बजाय आप इसके फोकस्ड बात करो प्री कंसेप्शन को। आप इमेजिन करो पेशेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप ठीक है, एज मैटर करता है, पैरिटी मैटर करती है, मैरिड फॉर मैटर करता है कि बिकॉज यू नीड टू नो कि एग्जैक्टली उसको खुद भी कितनी जल्दी है, बट एज अ होल थिंग, अगर क्या उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, एक्सक्यूज मी, क्या उसको इस वक्त कोई फ्लेयर अप डिजीज तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि SLE की प्री कंसेप्शन में ये बात है कि 6 महीने का ड्यूरेशन है विदाउट फ्लेयर अप। उसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये वो एपिलेप्सी में या और चीजों में होता है, इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी एंटीबॉडीज शुड बी नेगेटिव, उसका ऑफ कोर्स एक्टिव ल्यूपस नेफ्राइटिस ना हो, उसके लेटेस्ट RFTs क्या है, क्योंकि अगर वो एक्टिव ल्यूपस नेफ्राइटिस की पेशेंट है तो फिर तो बहुत ही बुरा प्रोग्नोसिस है प्रेगनेंसी में मदर के अपने लिए। तो ये सारी चीजें,
तो ये आपने कुछ, और फिर मेडिसिन डेफिनेटली वो क्या ले रही है, क्योंकि अगर जो मेडिसिन बिंदा ने हमें बताई अगर वो ले रही है तो फिर तो डेफिनेटली 3 मंथ्स तक, जब तक वो मेडिसिन छोड़ेगी नहीं तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, एटलीस्ट 3 मंथ्स। और अगर वो क्या उसका फिजिशियन उसको अलाउ कर रहा है ये मेडिसिन छोड़ने के लिए, तो इफ यू स्टार्ट इन प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के आई वुड लाइक टू डू मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड शुड इन्वॉल्व हेमेटोलॉजिस्ट और a physician along with me to make any decision, because ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ही एसएलई के अंदर है, कैन आई गेट प्रेग्नेंट और नॉट। क्योंकि अनप्लैंड प्रेगनेंसी वाला पेशेंट अगर आपके पास आ जाता है और उसके अंदर कोई फ्लेयर अप होता है, सॉरी मैं म्यूट कर रही हूँ, तो आप इस चीज को उतनी इम्पोर्टेंस देनी है कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज एवरीथिंग एक्चुअली। वही तो मेन चीज है पूरी ऑब्स्टेट्रिक्स में, कि अगर कोई पेशेंट आपके पास बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट एंड शी इज आस्किंग दैट कैन आई गेट प्रेग्नेंट नेक्स्ट 1 ईयर, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सवाल ही नहीं है एसएलई में। उसमें जो 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताओ ताकि आपकी थ्योरी का पता चले। तो फिर आपने कहीं वो पहले हाइपरटेंसिव तो नहीं है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन तो नहीं उसको साथ में अटैच, उसकी यूरिन की रिपोर्ट क्या आ रही है, यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा, उसके यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा, उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए का लेवल लेटेस्ट क्या चल रहा है। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के हाई लेवल्स जा रहे हैं, तो शी इज गोइंग मोर टुवर्ड्स ल्यूपस नेफ्राइटिस, शी कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, इन द नेक्स्ट 1 ईयर, जब तक उसका ये ल्यूपस नेफ्राइटिस, और उसको ट्रीट करने के लिए उसको ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जो कि प्रेगनेंसी में टेरेटोजेनिक है। और फिर जब वो मेडिसिन बंद करेंगे उसके भी 3 से 6 माह के बाद हम उसे अलाउ करेंगे प्रेग्नेंट होने के लिए, तो ऑब्वियसली शी कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर। देन उसकी लेटेस्ट एंटी आर ओ एंटी एल एंटीबॉडीज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दीज थिंग्स मैटर मोर इन दिस टाइप ऑफ स्टेशन। जिस स्टेशन में आपको वो कहते हैं कि आप उसकी पूरी वैल्यूएशन करें और मैनेजमेंट करें, उसमें तो ठीक है, यू बिगिन विद अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री एंड यू टॉक अबाउट प्रीवियस प्रेगनेंसीज, यू टॉक अबाउट मेनी अदर थिंग्स। बट इसके अंदर तो आपने, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, आपका हर सवाल के 2 2 3 3 भी नंबर अगर हैं और एज अ होल आपने स्टेशन को अच्छे नंबरों से भी पास करें, क्योंकि थ्योरेटिकल स्टेशन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। क्योंकि वही मैं बता रही हूँ कि ये जो थ्योरेटिकल स्टेशन होते हैं वो आर या पार होते हैं, उसमें आप की बहुत सारी चीजों में एम्बिग्विटीज कम होती हैं, यू नो एग्जैक्टली। हमारे पास गाइडलाइंस है, टॉक आर्ट एसएलई का टॉक आर्टिकल बहुत अच्छा है, अगर मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि उसका मेरा ख्याल है लिंक नहीं खुलता, बट मैं करके आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो वो आप उसमें आई थिंक हर चीज है, तो वो आप अच्छी तरह पढ़ लो तो आपको पूरा टॉपिक हो जाएगा कवर। तो उसके हिसाब से तो दिस फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किया ठीक, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, तो फिर ये स्टेशन कैसे पूरा होगा। तो सबसे पहले मुझे ऐसे लगा आज के दिन के आप लोगों को डिफरेंट स्टेशंस में आपकी अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां मैनेजमेंट की बात आ रही है और इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट की बात आ रही है, उसके अंदर तो वो नॉर्मली 2 स्टेशन होते हैं, पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन होता है, अगले स्टेशन में जाके उसकी मैनेजमेंट डिस्कस होती है। जहां सिर्फ ट्रीटमेंट पे फोकस है तो उसके अंदर बहुत लंबी, अगर आप हिस्ट्री शुरू कर दोगे तो फिर वो बात वही रह जाएगी। जहां पे सिर्फ हिस्ट्री की वैल्यूएशन है या जहां पे सिर्फ एग्जामिनेशन है, उसमें डोंट बिगिन विद हिस्ट्री, देन जस्ट फोकस ऑन एग्जामिनेशन। जहां पे कोई स्पेसिफिक हो सकता है, कोई इन्वेस्टिगेशन सिर्फ डिस्कस करनी हो कि दिस इज अ पेशेंट, और फॉर एग्जांपल वो ऐसे लिखी है एंड शी इज हियर विद प्रीक्लेम्पिया, और उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करनी है, देन यू जस्ट नीड टू टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन। आपने अपने स्टेशन को गौर से पढ़ना है और उसको उसी के अंदर रहना है। अगर इधर उधर टाइम, क्योंकि बहुत कम टाइम है एक स्टेशन के लिए, और वो सारा कैलकुलेटेड टाइम है उन सवालों के हिसाब से, तो उसमें आपने वो करना है। ये स्टेशन कंपैरेटिवली इसलिए आसान है क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद आप पेशेंट को वैसे मैनेज करते हुए मिस कर सकते हो, बट बिकॉज इसमें 1 2 3 4 करके कवर हो रहा है, तो आपने तो इसमें बस अपनी थ्योरी बोलते जानी है, ठीक है। तो ये, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड के प्लान्ड प्रेगनेंसी इन एसएलई ही सब कुछ है, और अगर आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में कुछ भी मिस कर दोगे एसएलई में, तो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट यू डोंट नो हाउ टू मैनेज दिस पेशेंट, और वो पेशेंट फिर प्रेग्नेंट होके आ गई जबकि उसको नहीं होना था प्रेग्नेंट, तो गड़बड़ बात है, ठीक है। चलो गुड, ठीक है। तब बिंदा, सो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग से अगला क्या क्वेश्चन है, मैम विच ड्रग शुड आई अगला स्टॉप है बिफोर बिकमिंग गुड। सो आपने क्वेश्चंस के हिसाब ओके से चलना है, ये नहीं करना कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही सारे सवालों के जवाब दे दिए, मैम आई क्योंकि वाज अगर आप थिंकिंग ऐसे, दैट आई हैव टू टेक द हिस्ट्री जी या ओके आई मैम अंडरस्टैंड, विच ड्रग शुड आई स्टॉप मैं ये आपने सोच थोड़ी रही थी सी कि क्विक पता हो हिस्ट्री, इतनी डिटेल्ड नहीं, आप ये हम्म बात, क्योंकि उसमें अगर पूरा टाइम चला जाएगा तो सवालों के जवाब कैसे होंगे।
नॉर्मली व्हाट आई थिंक is कि उन्होंने एक सिनेरियो सा दिया होता है कि 30-year-old lady is here who is maybe primary gravida or who is gravida to para 1 and she is planning to conceive again and she has come up with questions. तो उन्होंने बहुत सारे आपके हिस्ट्री के पॉइंट्स के सवालों के जवाब दिए होते हैं, उसके अंदर आप क्विकली बात कर लेते हो कि ठीक है, आई नो द एज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अब मैंने उससे लेटेस्ट ये बात पूछ लेनी है, ज्यादा या तो प्रीवियस प्रेगनेंसी का पूछ लूंगी और अब आगे चलूंगी, ठीक है। तो उसमें आपने बहुत ज्यादा टाइम नहीं उसमें वेस्ट करना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि एसएलई डायग्नोस कैसे हुआ था, मेडिसिन वो क्या, स्टे ऑन एसएलई फॉर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, ठीक है। चलो गुड, विच Hmm. ड्रग शुड आई स्टॉप, दिस आर डिफिकल्ट क्वेश्चन, विच ड्रग शुड आई स्टॉप बिफोर Okay, ma'am. Ma'am, I want to counsel my patient that if she is taking methotrexate, mycophenolate, cyclophosphamide, so she should stop these drugs 3 months before, 3 to 6 months before pregnancy, because the washout period of these drugs are 3 months, 3 to 6 months, and as well as these drugs have a teratogenic effect on the baby. So she should stop, and she can continue the corticosteroids and as a thiopren and hydroxychloroquine. अगर इस सवाल का जवाब आप इस तरह से देते कि आई वुड लाइक टू असेस हर प्रेजेंट कंडीशन वेदर शी कैन स्टॉप एनी मेडिसिन और नॉट, ठीक है ना। क्या Okay, पता वो okay. इतने फ्लेयर अप में बैठी हुई है या उसका पीछे से ल्यूपस नेफ्राइटिस चल रहा है, या प्रोबेबली उसके इतने लैब्स, इसके डीएनए लेवल्स इतने हाई आ रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कि वो, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल द मेडिसिन आप कहो कि आई वुड लाइक टू रीअसेस इफ शी कैन स्टॉप द ड्रग्स, आई वुड लाइक टू हैव एन ओपिनियन ऑफ अ फिजिशियन, एंड इफ ही अलाउज देन Ma'am, ये वाली ड्रग्स हैं I want to बिकॉज दे आर, liaison with the यस, specialist doctor or ma'am, I want to liaison बिल्कुल, with the specialist doctor of my परफेक्ट, patient, and after combine mutual गुड, decision, then we can stop any medication. परफेक्ट, But the teratogenic medication and the contraindicated medication are mycophenolate, methotrexate, and the cyclophosphamide, which have the बिल्कुल। washout period of 3 to 6 months. अब ठीक है, अच्छा पता है एग्जाम के अंदर ना मे बी एवरीवन नोज ऑल द आंसर्स, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि टॉक आर्टिकल है, अगर आप उसमें देखो तो उसमें इतने अच्छी सारी ड्रग्स भी दी हुई है, टेरेटोजेनिसिटी भी बताई हुई है, कौन सी कब बंद करनी है, सब कुछ बताया हुआ है और हर कोई वो याद करके आया होगा, बट हाउ यू आंसर दैट क्वेश्चन रियली मैटर्स। उससे पता चलेगा कि आपकी अप्रोच क्या है पेशेंट के साथ, ठीक है ना। तो आपका द वे यू आंसर द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपने जरूर वो करना है, ठीक है। अच्छा, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज Okay. व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर इन प्रेगनेंसी। Okay, I want to counsel my patient empathetically about the maternal and fetal implication of SLE in the pregnancy. The ठीक है, maternal पुट करो। implication are okay. The maternal implication are the preeclampsia, hypertension, and the risk of thromboembolism, and placental abruption, and the fetal implication would be the early miscarriages, preterm labor, low birth weight, IUGR, and the perinatal deaths. वेरी गुड। सो आपने तकरीबन सारी चीजें वो कवर कर ली हैं, आई थिंक मेन तो ठीक है। आई थिंक इट्स ओके, इतनी भी मैटरनल और फीटल आप करके बताते हो इसी तरह, तो Okay. चलो ठीक है, ओके, तो गुड, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये या फिर मतलब आप इसमें थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं है कि प्रेगनेंसी का डिजीज पे क्या इफेक्ट है, डिजीज का प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट है वो। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑन फर्टिलिटी। Ma'am, about this question, I think that there is no effect of SLE on fertility or the treatment on fertility. Patient may conceive if she has having SLE or she is having treatment. ठीक है, सो ठीक है आंसर। सो फॉर टुडेज क्लास लेट्स डू द होल केस आल्सो, ताकि हमारा सेली का पूरा टॉपिक भी कवर हो जाए, और ये बहुत टू द पॉइंट सारे आपके क्वेश्चंस है। इसमें मुझे ऐसे लगता है ये क्वेश्चन है, सिनेरियो ऐसे आएगा कि दे विल बी रोट देयर एंड यू विल हैव टू टेक अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री, और उसके बाद आपने उसके सवालों के जवाब देने होंगे। तो उसके अंदर आपने ब्रीफ हिस्ट्री, का यूं करना होगा कि वो इसी तरह मेन सिर्फ फोकस एसएलई पे रखकर सवाल करने होंगे, अगर कोई मल्टी ग्रेविड है, प्रीवियस प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद आपने जो है उसका फिर सवालों के जवाब, ठीक है। तो तबिंदर, लेट्स डू अ केस आल्सो, मैं आपको एक केस भी दे देती हूँ ताकि हम क्विकली वो कवर भी कर लें, क्या ख्याल है।
जी जी So patient is 25 years of age and she is married for 2 years. And she is known case of SLE. And she had flare-up effects 1 year back. And and now she is taking prednisolone for the treatment. And और उसके अलावा and on NSAIDs. और कोई मेडिसिन नहीं अभी वो ले रही. And she has come to you. बल्कि यूं करो कि she is at 20 weeks of gestation. ठीक है. okay. She's known case of 20 SLE. weeks. And she's on prednisolone, and she had the last methotrexate and the flare-up effect 1 year back. And she had a planned pregnancy, and she's at 20 weeks now. Okay, हिस्ट्री मैम आपने रोल वैसे क्या है? काफी कवर कर ली थी. नहीं आप अपने एक स्ट्रक्चर्ड की तरह कर लो ताकि हमारा क्विकली हो जाए. क्विकली हिस्ट्री और आप एग्जामिनेशन बोल दो, फिर मैं आपसे इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस अच्छा करूंगी. okay okay. Okay. First of all, I want to ask about the patient about her SLE and when she was diagnosed, and as it is giving that she is on prednisolone, and when she had last checkup with the specialist doctor, then is she taking folic acid, and then about trimester wise. I will take the history about the second trimester, and do she have any pain, bleeding, and is she feeling has she feeling quickening, and about the first trimester dating scan and knuckle translucency scan, and about the second trimester anomaly scan at 20 weeks, and has she undergone fetal echocardiography, and about her blood pressure, and about her visits, and about her visits, and about the past obstetrical and medical history, and about the previous obstetric. अच्छा देखो मेरी बात सुनो. मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ग्रेविड 25 ईयर्स की, मैरिड फॉर 2 years. ठीक है ना. और प्लान प्रेगनेंसी है. अब इसके अंदर पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, पास्ट ये वो नहीं बातें करनी. दूसरी चीज Okay, ये okay. कि व्हेन यू स्टार्टेड योर हिस्ट्री, आई लाइक इट कि आपने क्रॉनिक डिजीज से ही हिस्ट्री शुरू की इंस्टेड के प्रेगनेंसी से करते हैं. ये नॉर्मली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या स्टोरी की तरह जो आप हिस्ट्री लेके चलते हो, ये एग्जाम में भी पसंद की जाती है, सुनने वाले को भी समझ ज्यादा आती है. सो यू स्टार्टेड विद द SLE इटसेल्फ. बट अगेन इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैंने ये बताया है आपको कि क्रॉनिक डिजीज में कोई पेशेंट अगर जैसे एपिलेप्सी है, तो बेशक वो 20 वीक्स पे आई है या 32 वीक्स पे आई है, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है, हम सबसे पहले उससे यही पूछते हैं कि व्हेन यू कंसीव्ड आपकी कंडीशन कैसी थी, आप ड्रग्स कौन सी ले रहे थे, आपके ब्लड के टेस्ट कैसे थे व्हेन यू कंसीव्ड. शुगर की पेशेंट है, व्हेन यू कंसीव्ड व्हाट वाज योर HbA1c, राइट. उससे Okay, हमें when ये you अंदाजा conceived. होता है कि बच्चे किस कंडीशन में हो सकता है. So when she conceived, she had SLE. What were your labs about RO and LA antibodies? आपका क्या फ्लेयर Okay, अप इफेक्ट था. इस वक्त तो आप प्रेडनिसोलोन और एनसेड किसी वजह से ले रहे हो. एनसेड नॉर्मली वी डोंट गिव एनसेड. तो क्या इफेक्ट था आपका कि जिसपे प्रेडनिसोलोन और वो ले रहे हैं, यू ऑन सम अदर मेडिसिन और व्हाट. चलो ये तो मैंने बता दिया कि प्लान प्रेगनेंसी थी, बट वाज शी इन लिएजन विद अ गायनेकोलॉजिस्ट आल्सो व्हेन शी वांटेड टू कंसीव, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये बातों पे थोड़ा सा एम्फसाइज करके, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि SLE में प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, एपिलेप्सी में प्री कंसेप्शन इज एवरीथिंग. मतलब इफ अ पेशेंट कंसीव्स विदाउट प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इन सच अ टाइप ऑफ डिसीजेस, तो उसके लिए बहुत हैजर्ड है प्रेगनेंसी में. इवन इन डायबिटीज, ये सारी चीजों में हर चीज है ही प्री कंसेप्शन. इन चीजों में खासतौर पे वैसे भी होनी चाहिए प्री कंसेप्शन, उतनी इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, ब्लड प्रेशर भी, डायबिटीज भी, एपिलेप्सी, कार्डियक, SLE, इसमें तो बात ही सिर्फ प्री कंसेप्शन है. अगर आपने प्री कंसेप्शन अच्छी बातें कर दी, या फर्स्ट विजिट पे पेशेंट आपके पास पहली दफा आई है एंड शी इज प्रेग्नेंट, एंड यू स्टार्टेड विद द टाइम व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट, व्हाट वाज द कंडीशन, व्हाट मेडिसिन शी वाज ऑन. एपिलेप्सी में क्या वो मोनोथेरेपी से शुरू हुई है या वो ट्रिपल थेरेपी से शुरू हुई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा. उसको फिट कब पड़ा था, प्रेग्नेंट होने के कितने महीने पहले लास्ट फिट पड़ा था, एटसेट्रा. तो इट्स ऑल अबाउट प्री कंसेप्शन, राइट. इसी तरह SLE में तो आपने जब ये हिस्ट्री भी शुरू की, बात तो SLE से ही शुरू की, लेकिन उस पे इन सारी बातों को उतना ही टाइम दो जितना शायद पूरी हिस्ट्री को टाइम दे रहे हो,
ताकि सुनने वाले को भी पता चले मैम कि आफ्टर आपका ये प्री SLE, कंसेप्शन कितनी मैटर कर रही है। जी ठीक है, मैम अच्छा अब आफ्टर हम आगे SLE चलेंगे हिस्ट्री से। ओके ओके। अब आप रिपीट बाद में करना, पहले हम आगे चलेंगे। सो अभी ऐसे अभी क्वेश्चन है तो पूछ लो तबिंदर। नहीं नहीं मैम ठीक है, मैं वही बोल रही थी कि आफ्टर SLE नहीं प्री नहीं, वो कंसेप्शन काउंसलिंग। बाद में। अच्छा, सो ठीक है। नाउ शी इज एट 20 weeks। ठीक है, यू कंफर्म द डेट्स, डेटिंग स्कैन, एनॉमली स्कैन। व्हाई डिड यू से फीटल एको? Every patient of SLE doesn't need to get the fetal echo done. Fetal echo एक आसान चीज नहीं है करानी। हर fetal, I don't know about Karachi, but in Lahore you really need to find out a doctor to get the fetal echocardiography done in a private center. हाँ, बहुत हर जगह हर डॉक्टर नहीं आपको मिल जाता, आपको अरेंज करना पड़ता है। सो इट्स नॉट एन इजी थिंग। इसके इसको कराना भी बड़ा मुश्किल है इन यूट्रो फीटल एको। तो वो स्पेसिफिक इंडिकेशंस है इसमें करानी है। कोई ड्रग ऐसी ले रही है, कोई एसएलई की कंडीशन ऐसी है जिसमें आप उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या, वो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपने फीटल एको ऐसे ही नहीं बोल देनी। ठीक है, तो ये चीजें। फिर उसके बाद व्हाई इज शी टेकिंग एनसेड्स? प्रेडनिसोलोन भी कुछ पेशेंट्स को, इवन प्रेडनिसोलोन की भी वैसे जरूरत नहीं पड़ती जो फ्लेयर अप वाले ना हो। तो और देन यू कैन ऑल्सो आस्क कि क्या पहले ज्यादा कंडीशन खराब थी प्रेगनेंसी का, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया। नॉर्मली ऑटोइम्यून या इस किस्म के प्रॉब्लम्स दे टेंड टू इम्प्रूव इन प्रेगनेंसी। सो ये भी थोड़ा सा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारा कुछ ठीक है, गुड। सो एग्जामिनेशन बताओ अब। Ma'am, I want to see the BMI of my patient, BP, pulse temperature, and respiratory rate. Then general look of the patient and rule out anemia by seeing conjunctiva and the nails. And then I want to do the gentle perabdominal examination to see the symphysiofundal height. And then I want, that's it, ma'am. And I also want to auscultate the chest for any restrictive fibrosis disease. And all. अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा। वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ना बोलो एग्जामिनेशन में। ठीक है, बस ठीक है, जब जनरल फिजिकल कर रहे हैं तो हमने चेस्ट तो ऑस्कल्टेट कर ही ली ना। ठीक है, तो अपने पाँव पे Okay, नहीं ma'am. खुद से कुल्हाड़ा मारना। तो ठीक है, ओके, बट सिस्टमैटिकली इट्स बेटर। ब्लड प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने एडीमा जरूर देखना है। व्हाट इफ शी इज ऑलरेडी हैविंग प्री एक्लेम्पशिया, और फिर किडनी Fetal डिजीज edema. में भी एडीमा इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आप रैपिड वेट गेन की भी बात कर सकते हो इवन। सो वेट का आपने करना है वो, ये सारा जनरल फिजिकल इसमें पूरा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर किडनी की वजह से भी जनरल फिजिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें रेस्पिरेटरी की वजह से भी जनरल फिजिकल इंपॉर्टेंट है। तो उसको स्किप करके डायरेक्ट फंडल हाइट पे नहीं आना। फंडल हाइट जा रहा है 20 weeks पे, हमें और क्या क्या मिल रहा है। तो बस ठीक है, 20 weeks का आपने ये करके और ज्यादा से ज्यादा आप कॉन्ट्रैक्शंस की बात कर सकते हो या इस तरह से। ओके फाइन, सो गुड। इन्वेस्टिगेशंस बताओ। Now, ma'am, investigation. First of all, the general baseline blood, complete blood count to rule out anemia, TLC, and the platelet. Blood group with Rh factor, HB, SAG, anti-HCV to rule out viral markers, and urine DR to see the protein in the urine, pus cells, and the glucose. Then now specific investigation. I want to do the anticardiolipin, lupus anticoagulant, and anti-TS GNA, and anti-Rho, anti-La, and the complement factors C3, C4. And then I also want to go for the renal function test and the liver function test and chest X-ray, echo, and OGTT. ठीक है, आई थिंक आपने जो इन्वेस्टिगेशंस बोली है उसके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स कटने वाली है वो नहीं है, लेकिन आई थिंक देयर वर फ्यू एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस। कोई और कुछ बात स्पेसिफिक करेगा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, Ma'am, कुछ ऐड करना है या ultrasound सब्ट्रैक्ट scan, करनी है इन्वेस्टिगेशन तपिंदर की में से? ultrasound अल्ट्रासाउंड scan. पे तो हम बात करेंगे इन ब्लड टेस्ट में से। Okay. देखो बात ये है कि अच्छा, किसी ने लिखा है चेस्ट एक्सरे नहीं, अगर क्लिनिकल फाइंडिंग कोई नहीं है तो चेस्ट एक्सरे नहीं कराएंगे। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज वाली जो आपने कराई है, एंटी कार्डियोलिपिन और वो सारी इन्वेस्टिगेशंस प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती हैं। तो आई डोंट नो, मैं अगर फिजिशियन को चाहिए तो ठीक है, वरना आई थिंक कि मैं तो प्रेगनेंसी में नहीं कराऊंगी। और उसके अलावा
हाँ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज और एंटी देखो सेमिट डबल एंटीबॉडीज स्ट्रैंडेड डीएनए एएनए और C3 C4 मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई डोंट नो वो क्यों कराते हैं, वो मेरी फील्ड नहीं है। हाँ, मुझे जो मेरी एंटी ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए करा लूंगी क्योंकि उसका रैपिड राइज भी मुझे डिटेरियोरेशन ऑफ द डिजीज बता रहा है। एंटी आरओ एंटी एलए एंटीबॉडी करा लूंगी क्योंकि उसका मेरी मैनेजमेंट पे बहुत इफेक्ट आ रहा है, मुझे पता चलेगा कि बच्चा किस लेवल तक जा रहा है, मदर की क्या कंडीशन है। मुझे C3 C4 का नहीं पता, इवन आई डोंट नो अबाउट द एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी करा के मेरी मैनेजमेंट में क्या फर्क पड़ेगा मुझे नहीं पता। तो आई लीव दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस टू द फिजिशियन। आप मैडम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो लिवर कराओगे जी। फंक्शन टेस्ट हम करवाएंगे। अगर कोई ऐसी मेडिसिन आपको उसको देनी पड़ी है तो आप बेशक करा लो एलएफटीज। मे बी स्टीरॉइड्स दे रहे हो, यस, उसमें आप एक बेसलाइन करा लो। उससे ज्यादा मैं मैडम इंटरेस्टेड वो हूँ आरएफटीज में। रीनल उससे ज्यादा मैं रीनल तो फंक्शन कराएंगे ना, रीनल तो कराएंगे। ज्यादा मैं इंटरेस्टेड आरएफटीज में हूँ, उससे ज्यादा मैं इंटरेस्टेड थी यूरिन कंप्लीट में। यूरिन कंप्लीट में इस केस में वैसे भी प्रेग्नेंट में आप शुगर के लिए बात नहीं करोगे, आप सिर्फ पस सेल्स और प्रोटीन की बात कर लो, लेकिन इस पेशेंट में आप ब्लड सेल्स की भी बात कर लो। बिकॉज इफ अ पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स नेफ्राइटिस तो शी मे हैव ब्लड सेल्स इन हर यूरिन ऑल्सो। तो आप उस तरीके से बात कर सकते हो। तो उसके अलावा यस, आई थिंक आई विल गेट द RFTs डन एंड आई विल गेट द सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स डन आल्सो। और उसके अलावा आई थिंक बाकी ठीक है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड्स क्या कराओगे तबिंदर? Ma'am, first of all, the dating scan to know about the हर viability of the सवाल baby के and जवाब में एक आदत ठीक करनी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल और लास्ट ऑफ ऑल और okay. एब्सोल्युटली और नॉट एब्सोल्युटली कोई कमेंट्स नहीं बोलने एग्जाम में। एक तो ये बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, दूसरा ये आपको बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो Okay. नेवर यूज दीज सेंटेंसेस। आप पेशेंट के सामने भी बैठ के ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो। जो सवाल जो कमेंट एग्जाम के लिए या जो एडवाइस एग्जाम के लिए आप समझो, वही आपकी क्लिनिक के लिए भी एडवाइस है। आप क्लिनिक में बैठ के पेशेंट के सामने ये नहीं बोल सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। वो कहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सिजेरियन करना है तो ब्लड सेकंड ऑफ ऑल अरेंज करना है, व्हाट डू यू मीन फर्स्ट ऑफ ऑल? सो डोंट यूज सच अननेसेसरी वर्ड्स एंड आप हर सवाल के जवाब में यूज कर रहे हो, सो अपनी आदत ठीक करो। चलो अच्छा Okay, बच्चा बताओ। ma'am, I go for the dating scan to ठीक know the है। viability of the fetus and the knuckles translucency, and then the anomaly scan at the 20 week to rule out any congenital anomaly, to know about the presentation of the fetus, the Likert volume, estimated fetal weight, and position of the placenta. If it has anti-Rho, anti-La positive, then we can go for the fetal echocardiography at 18 to 20 week and 22 weeks. And as this patient as at the baby is at would be at the risk of IUGR, so yes, we can go for the serial scanning of the baby every 4 weekly serial growth scan to rule out IUGR. ये आखिरी स्टेटमेंट फिर से बोलना, क्या बोली थी एंड पे? अगर क्या आएगा तो सीरियल स्कैन होगा। Anti-Rho, anti-La positive. पॉजिटिव है तो क्या करोगे? Fetal echocardiography. ठीक है, और ग्रोथ स्कैन्स क्यों कराएंगे? Ma'am, as the patient of as the baby of the SLE is at risk of IUGR, हम्म so we तो have कब to से go for the कराओगे serial ग्रोथ growth. स्कैन? Ma'am, कब से? it is not written. It is not written in the talk that कब से कराएंगे, लेकिन from 20 week every 4 weekly. नो, इस तरह के ऑटोइम्यून में चाहे अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल्ड SLE है, राइट, बट शी हैज गॉट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बेशक उसका PIH साथ में नहीं है, देयर इज नथिंग एल्स, ओनली SLE, शी इज एट हाई रिस्क ऑफ हैविंग IUGR. Her one Doppler is done at 28 weeks, other at 32 weeks. अगर 32 वाला ठीक है तो बस ठीक है, फिर नॉर्मल मैनेजमेंट। अगर और सीरियल ग्रोथ तब अगर आपको IUGR लग रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है। नॉर्मल प्रेगनेंसी विद ऑटोइम्यून डिजीज और एनी क्रॉनिक रीनल डिजीज और क्रॉनिक हाइपरटेंशन, क्रॉनिक डायबिटीज, इन सब के अंदर आप 28 और 32 वीक्स पे एक बेसलाइन डॉपलर कराते हो। अगर आपने 20 वीक्स पे इसका जिक्र करना है तो आप यूट्राइन आर्टरी डॉपलर की बात कर सकते हो कि मैं यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराऊंगी, और अगर वो पॉजिटिव आती है रिपोर्ट तो फिर मैं 28 वीक से इसका डॉपलर या सीरियल ग्रोथ स्कैन 2 वीकली, ग्रोथ स्कैन 2 वीकली होता है, 4 वीकली कोई ग्रोथ स्कैन नहीं होता।
सीरियल ग्रोथ स्कैन जिसमें एब्सोल्युटली इंडिकेटेड है उसमें होता है। हर पेशेंट के फाइल की एक कॉपी नहीं बना दी जाती स्कैन्स पे स्कैन्स करा के। 20 वीक से आप सिंगलटन प्रेगनेंसी के सीरियल ग्रोथ स्कैन्स नहीं कराते। ट्रिपलेट्स के भी, चलो ट्रिपलेट्स या मोनोकोरियोनिक ट्विंस के 16 या 24 वीक से भी शुरू हो जाए तो हो जाए, वो मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात है। सिंगलटन प्रेगनेंसी के अंदर 20 वीक्स में कौन ग्रोथ स्कैन्स कराता है? ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक दैट। ग्रोथ स्कैन्स का कॉन्सेप्ट 28 वीक्स पे शुरू होता है, और वो भी तब जब आप अगर 20 वीक्स पे कमेंट करना है तो अपना कॉन्सेप्ट ठीक रखो कि अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर 20 वीक्स पे पॉजिटिव आ रहा है तो फिर मैं उसका 28 वीक से सीरियल ग्रोथ स्कैन कराऊंगी और 28 पे डॉपलर कराऊंगी, एंड इफ नीडेड तो 32 पे तो कराऊंगी, अगर इफ नीडेड तो बीच में फिर मैं डॉपलर और रिपीट करूंगी अकॉर्डिंग टू द डॉपलर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, क्योंकि उसके अंदर फिर बहुत ज्यादा चांस है कि वो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी आएगी अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर पॉजिटिव है। ठीक है, डॉक्टर इस सो इट्स लाइक दैट। डॉक्टर इस पेशेंट का क्या हमें रिस्क फैक्टर एक मेजर आया है, तो व्हाई नॉट वी आर गोइंग फॉर द यूट्राइन आर्टरी एट द 20th यस वीक वी कैन। यस, मैंने यही कहा है कि अगर है तो फिर आप 20 वीक्स पे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर बोलो। ठीक है, सो गुड। चलो अब तबिंदा मैनेज करो इस पेशेंट को। Okay, ma'am. क्या रिस्क फैक्टर I था will. मैडम? सॉरी, क्या? मैडम सॉरी, मैंने मिस कर दिया शुरू से। इसका क्या रिस्क फैक्टर था जिसपे आप यूट्राइन एसएलई, आर्टरी डॉपलर कह रहे हैं? एसएलई, एसएलई। अच्छा अच्छा, ठीक। रिस्क फैक्टर फॉर आयुजिया, रिस्क फैक्टर फॉर प्रीएक्लेम्पसिया। ठीक है, सो दैट्स व्हाट। ठीक है, गुड। Ma'am, I will counsel my patient empathetically about her disease and the maternal and fetal implication, and then I will create the team तबिंदा of पहले MDT, रिकॉर्डिंग तो which पूरी करा लो आपको। आई वुड Ach- लाइक टू कंप्लीट माय इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट। ठीक है, I would like to complete my यस, investigation गुड। first. Okay, चलो, okay. क्या क्या Ma'am, चाहिए? then यस, यू नीड टू नो अबाउट सीबीसी। मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। ब्लड ग्रुप इसका पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, सीबीसी में एचबी उसकी 13 है, और प्लेटलेट्स भी ठीक है। यूरिन के अंदर इसका +3 प्रोटीन यूरिया। and ma'am, blood pressure, ब्लड प्रेशर भी blood इसका pressure. ज्यादा रहता है। आपने जो लिया वो 150 Okay, 100 है। 150, 100. And ma'am, other investigations और अदर में कोई? क्या रह गया? आरएफटीज इसके नॉर्मल है, और हम्म आरएफटीज में इसका और थोड़ा सा क्रिएटिनिन हाई कर लो, बाकी और नॉर्मल है। और क्या रह गया? बाकी ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो भी जरा हाई है, हम्म और ओके बस आरओएलए मैम नेगेटिव है। ओके और क्या इन्वेस्टिगेशन है? बस हम्म स्कैन ठीक है, नॉर्मली स्कैन। शी इज एट ओके 20 वीक्स। Okay, ma'am. So I will counsel my patient about her disease, the fetal and maternal implication. As this patient is a high-risk pregnancy, so I will manage my patient in a consultant-led unit, and I will create the team of MDT doctor, which will have the consultant obstetrician, the physician, the rheumatologist, and the nephrologist and specialized nurse midwife. And as the blood, I will check the blood pressure of my patient on every visit. She will have frequent antenatal visit. As her blood pressure is 150/100, so I will start the antihypertensive medication, tablet labetalol 100 mg BD, and I will keep on monitoring her on every visit, and I will also check the urine dipstick on every visit. And I will, as the patient is of SLE, so I will also start the तो एडमिट नहीं किया आपने tablet. पेशेंट को, है ना? यू हैव नॉट एडमिटेड हर। आप उसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर रहे हो, बिकॉज यू सेड के ये मैं एवरी विजिट पे करूंगी। Hmm. विल यू एडमिट हर और नॉट? जस्टिफाई करो। Yes, ma'am, I इफ will admit यस, her. बाय। Ma'am, because all the as her blood pressure is high, as she has a risk factor of SLE, as her anti-DS DNA is also high, so maybe she will deteriorate and she will get some flares of the SLE, and so it is better to admit this patient and manage, and then if when she becomes stable, so we can discharge her home. ठीक है, इट्स Okay. अ गुड Okay. जस्टिफिकेशन। देखो, आप इसको इस तरह बोल सकते हो कि शी हैज गॉट हाई ब्लड प्रेशर एंड हर प्रोटीन यूरिया इज +3, ऑल्दो शी इज एट 20 वीक्स ऑफ gestation. It's very very rare that we find preeclampsia of this type at 20 weeks, but I need to rule out if it is preeclampsia or if it is some renal disease related to SLE.
ठीक है ना। तो दोनों में से जो भी है, कंडीशन इज डिटीरियरेटिंग, she can end up in very bad renal disease if I don't take care of her now. So I can admit her for 1 day at least to rule out or to make the correct, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको इस तरह का सिनेरियो दिया है। प्री एक्लेम्पशिया और ल्यूपस या नेफ्राइटिस वाली जो कंडीशन होती है एसएलई की, दे ओवरलैप, इसका डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो 20 वीक्स पे थोड़ा सा इजियर भी हो गया। जो थर्ड ट्राइमेस्टर में आती हैं उनका डीमा भी हुआ होता है और पता नहीं क्या क्या भी हुआ होता है, और उसमें इतनी ओवरलैपिंग पिक्चर होती है कि यू डोंट नो इफ इट इज प्री एक्लेम्पशिया और इफ इट इज नेफ्राइटिस। तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली इट्स बेटर टू, लेकिन चाहे वो नेफ्राइटिस हो या वो प्री एक्लेम्पशिया, दोनों ही बुरी चीजें मदर के लिए। तो देर इज नो हार्म इफ यू कीप हर एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स के, ताकि आप उसको थोड़ा सा रूल आउट करो। यू इन्वॉल्व नेफ्रोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन, ताकि उसकी एसएलई की कंडीशन को वो देखे। मे बी शी नीड्स टू बी पुट ऑन सम मोर मेडिकेशन, ताकि इसका ये नेफ्राइटिस वाली चीज सेटल रहे। और या फिर प्री एक्लेम्पशिया, तो हम आगे बात करते हैं हाउ डू यू एग्जैक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। तो इस तरीके से आप फिर उसको करते हो, ठीक है। Okay, ma'am. Ma'am, I will also start the aspirin and the low molecular weight heparin in this patient, as there are the chances of the VT. So हेपरिन या लोपरिन? heparin, ma'am, SLE is the score 3 in the VT. So I I have don't to find an indication of starting heparin in her. अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो बता दे, मे बी मैं ना गलत कर रही हूँ, क्योंकि हेपरिन की इंडिकेशंस है। आई थिंक लोपरिन इज इनफ, क्योंकि शी इज नॉट हैविंग थ्रोम्बोफिलिया। थ्रोम्बोफिलिया की एक रिस्क फैक्टर है जिसके लिए आप लोपरिन स्टार्ट कर दोगे, एंड इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट लोपरिन एटलीस्ट। अभी फिर भी 20 वीक्स पे, तो उसके आगे प्लेसेंटा में कुछ हेल्प हो सकता है। ma'am, ठीक so है, we have to start the LMWH from 28 weeks. ये देख लेना जो As हेपरिन की इंडिकेशंस हैं। आई डोंट थिंक कि एसएलई में आपको हेपरिन देनी पड़ती है, सिर्फ एसएलई में। No, ठीक है, madam, okay, then ma'am. हाँ, madam, aspirin and low molecular weight heparin, when the cardiac activity is positive, then we should advise for that heparin. एसएलई में, नॉर्मल एसएलई में भी। Ma'am, because in 30% cases SLE is No, associated ma'am. with the APLA. मैडम Yes, सिंपल ma'am. एसएलई में नहीं देते हैं, एप्ला के साथ एसोसिएटेड हो तब देते हैं। नहीं, अगर SLE का प्रूवन है कि एंटी फॉस्फोलिपिड देखो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी में तो वैसे ही देनी है हेपरिन, अगर वो नहीं भी एसएलई, ठीक है ना। तो अगर पेशेंट है ही एसएलई की एंड शी इज नॉट मैडम प्रूवन ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी मैडम सिंड्रोम, देन आई डोंट थिंक। मैडम इसमें जो है ना, देखो मैडम इसमें जो है हेपरिन ना की जो गाइडलाइन है, मैं बताती हूँ, गाइडलाइन है, उसके अंदर पूरा टेबल बना हुआ है एंड पे इंडिकेशंस में। मुझे नहीं लगता कि उसमें सिर्फ 3-4 कंडीशंस हैं जिसमें आप शुरू कर देते हो व्हेनेवर द पेशेंट कम्स टू यू इन प्रेगनेंसी। उसके अंदर एसएलई नहीं है वो कंडीशन। एसएलई विद एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी है। एवरी एसएलई पेशेंट इज नॉट हैविंग एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ठीक है। तो आप हर पेशेंट के अंदर नहीं दोगे। और बाकी उसके कुछ लैब्स पॉजिटिव हैं तो यस, वो तो जाहिर है, जो अगर एंटीफॉस्फोलिपिड की पॉजिटिव है तो फिर दोगे। तो ये रीचेक भी कर लेना, लेकिन ओनली एसएलई इज नॉट एन इंडिकेशन टू स्टार्ट हेपरिन। हेपरिन स्टार्ट करना एक बड़ा डिसीजन है जी। वो गाइडलाइन में लिखा है कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री भी हो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की, तब हम स्टार्ट करते लो मोलेक्युलर वेट हेपरिन। वो तो करना ही है ना, एसएलई ना भी हो तो करना है। देखो ये तो वो इंडिकेशंस है ना जो कि है ही। जब आप क्लेक्सिन आजकल तो वैसे इतना महंगा हो गया, मिलता ही नहीं, और ऊपर से डेली का इंजेक्शन लगाना, इट्स नॉट एन इजी डिसीजन टू टेक। ये वैसे ये पास फेल वाला डिसीजन है, प्लीज इसको क्लियर कर लो अपने माइंड में। हर पेशेंट एसएलई को, क्या हर ऑटोइम्यून को आप लोग एसएलई आप ये हेपरिन स्टार्ट करोगे? नहीं, प्रीवियस मिसकैरेजेस है, एंटीफॉस्फोलिपिड का मसला अटैच्ड है, प्रूवन थ्रोम्बोफिलिया अटैच्ड है उसके साथ, या प्रीवियस उसकी कोई हिस्ट्री है या प्रोलॉन्ग है, वो तो सारी इंडिकेशंस हैं। अदरवाइज ही वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की गाइडलाइन में, जिसमें आपने हेपरिन कब स्टार्ट करनी है, उसके अंदर एसएलई इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन टू स्टार्ट हेपरिन देयर एंड देन, ठीक है। जी मैडम, So वो be careful. ये है कि
अगर एक्टिव एसएलई हो ना तो उसका 3 स्कोर होता है, तो 28 मैम वीक से स्कोर स्टार्ट 3 करते मुझे हैं भी वो भी। याद आ रहा था। वो भी वो भी 28 वीक्स पे, एक्टिव का, ठीक है। एक्टिव हम्म एसएलई। सो लोप्रिन, यस लोप्रिन, इवन अब तो डबल डोज वाली भी की भी बड़ी स्टडीज है। यू कैन, अगर आप 16 वीक्स तक अगर उसको डबल डोज लोप्रिन भी दे दो या लोप्रिन सिंगल भी दे दो, वो भी ठीक है। बट ऐसे ही बस हेपरिन नहीं बोल देना, ठीक है। ओके एक्सक्यूज मी मैम। चलो मैम गुड। हम्म ओके जी, मैम सो मैम हाँ जी, मैम 20 वीक्स पे हम लोप्रिन स्टार्ट कर सकते हैं कर उसका? दो। हाँ, कुछ नहीं होता, कर दो, ठीक है, चलें गुड। Ma'am, अच्छा। my patient हम्म will have, ma'am, more frequent visit, and I will check the blood pressure and the protein on every visit, every 4 weekly, and then देखो मजा if क्या I है, नहीं मैं तो विजिट पे आई नहीं, अभी तो पेशेंट एडमिटेड है। यू सेड okay ma'am, यू हैव डन द एडमिशन, उसके बाद क्या होगा उसके साथ? आपने उसे वार्ड में भेज दिया, अब okay ma'am, now we will monitor her blood pressure and the urine and the protein creatinine ratio, and liaison with the nephrologist to rule out any nephritis and to differentiate it. Is it preeclampsia or nephritis? To हम्म and then stabilize the patient and the blood pressure. ठीक है। अच्छा देखो, बात यह है कि आपने जस्टिफाई कर दिया कि आपने उसे एडमिट किया है, तो आप कहोगे कि आई विल कीप हर इन माय वार्ड और इन माय हॉस्पिटल एंड विल डू मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, स्पेशली फॉर द ब्लड प्रेशर एंड फॉर हर प्रोटीन यूरिया, उसका मैं रेशियो ये जो भी कराऊंगी, एंड आई विल इन्वॉल्व अ नेफ्रोलॉजिस्ट बिकॉज आई वांट टू रूल आउट if she is going into probably at 20 weeks, because it's very rare कि इस स्टेज पे प्रीक्लेम्शिया हो तो नेफ्राइटिस एंड और नेफ्राइटिस के अंदर आगे जाके इवन रीनल फेलियर भी हो सकता है, और कई दफा नेफ्राइटिस में जाके रीनल बायोप्सी के ऊपर जाके प्रूव होता है कि वो नेफ्राइटिस है। सो आई वुड लाइक कि इसका एक्सक्यूज मी, इसका नेफ्रोलॉजिस्ट देखे एंड दे शुड स्टार्ट ऑफ सम मेडिसिन या डोज बढ़ाएं ताकि उसका ये नेफ्राइटिस यहीं कंट्रोल हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि शी वाज ऑन एनसेड, आई वुड लाइक टू रिव्यू व्हाई शी टेकिंग एनसेड्स, उसको मैं दोबारा से चेंज करने की कोशिश करूंगी। अगर फॉर एग्जांपल समवन सेज कि आई डोंट वांट टू एडमिट हर, आई विल कीप हर जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन फॉर फ्यू आवर्स, इसका बीपी ठीक होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट को मैंने बता दिया, वो अपनी लैब्स करा रहे हैं, एंड क्लिनिकल पिक्चर इज गोइंग मोर टुवर्ड्स द नेफ्राइटिस, तो फिर वो तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने डील करना है। नेफ्रोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि नेफ्राइटिस में इसको एडमिट रखना है या नहीं रखना। मीनवाइल आई विल काउंसल हर द प्रोग्नोसिस एंड कि किस तरफ उसका जा रहा है, बिकॉज इट्स सच एन अर्ली टाइम इन द प्रेगनेंसी, और अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है एंड शी विल नीड मोर मेडिसिन, दे मे बी टेराटोजेनिक, बट ऑफ कोर्स फॉर मैटरनल इंटरेस्ट हमें करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको फॉर एग्जाम्पल इफ शी सेंट होम, नेफ्रोलॉजिस्ट ने भी रूल आउट कर लिया उसका, फिर हाउ फ्रीक्वेंटली विल यू कॉल हर? फिर आप बताओगे कि आफ्टर 2 weeks फॉर एग्जाम्पल इफ शी कम्स टू मी, फिर आप क्या करोगे, एग्जैक्टली क्या करोगे? यू स्टार्ट ऑफ अगेन विद द हिस्ट्री, और फिर उसके और व्हाट एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन यू वुड लाइक टू डू Ma'am, it उसका। is. हम्म I'm sorry. Is हम्म it written in the some talk article that we should call her every 4 weekly, and at every visit we have to check the blood pressure and the urine देखो, and the ये protein. पेशेंट And प्रोटीन यूरिया के साथ है, ये सिंपल एसएलई नहीं है। 4 weekly आप उसे बुलाओगे जिसकी हर चीज ठीक आ रही थी, okay. And ma'am, ठीक है it ना। was also, मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था कि it is also, I think Dr. शहनाज के lecture में, that we should do the visit, all the labs at every visit, यस, all the labs at the like ऑल renal लैब्स function तो ऑफ test. कोर्स नहीं, आप प्रोटीन, आप यूरिन, आरएफटीज उसके हर विजिट पे कराओगे। इवन यूरिन का आप तो मोर फ्रीक्वेंटली भी करा सकते हो, क्योंकि ये तो पहले ही यूरिन का वो करे, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट में नीड यूरिन ट्वाइस अ वीक और सो। और आरएफटीज हो सकता है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली कराए, डिपेंड्स ऑन द रीनल कंडीशन, ठीक है। तो Okay. अगर नेफ्राइटिस और प्रीएक्लेम्शिया को डिफरेंशिएट करना हो तो वो कैसे करते हैं ताबिंदा? Ma'am, it is written that we can only differentiate by renal biopsy. गुड। हाउएवर, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्लिनिकल कंडीशन के प्रीएक्लेम्शिया में edema और सिम्टम्स अटैच्ड होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ल्यूपस नेफ्राइटिस वाली चीज है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की वैल्यूज एकदम से राइज हो जाती हैं, यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स आते हैं, तो ऑब्वियसली रीनल बायोप्सी यू डोंट डू इन प्रेगनेंसी, प्रेफरेबली यू डोंट डू, करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको उस तरीके से डायग्नोस करके फिर उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो।
मैलर ऐश इज अनदर एंटिटी ऑफ SLE, ठीक है। SLE के जो सारा एक लंबा सा टेबल बना होता है जिसमें पता नहीं कितना 4 आउट ऑफ 11 या पता नहीं कितने आउट ऑफ 11 करके रहे हैं, तो फिर डायग्नोसिस बनता है SLE का। वो सारे भी सिम्टम्स आपको याद होने चाहिए, स्पेशली फॉर हिस्ट्री। रीनल बायोप्सी नहीं करते हम, ठीक है। हाँ, 4 आउट ऑफ 11, ठीक है। सो गुड। सो अच्छा, ठीक है। तो फिर आगे फॉर एग्जाम्पल शी हैज रीच्ड 28 वीक्स, इससे आगे क्या मैनेजमेंट करोगे? Ma'am, after 28 week, as this patient has a risk of intrauterine growth restriction, so umbilical artery Doppler at this time, and if it is showing that the fetal growth is less than 10 centiles, so I will go for the serial growth scan and Good. serial growth scan. सीरियल नहीं ना बोलना, आपने कहना है ग्रोथ स्कैन आफ्टर एवरी व्हाट। सीरियल ग्रोथ स्कैन इज नो, इसरा नहीं बस। हाँ, Fortnightly. क्योंकि आपने आंसर कंप्लीट देना है, एग्जामिनर को अगला सवाल ना करने का मौका मिले, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ग्रोथ स्कैन तो 2 वीक, हाँ 2 वीकली होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और उसके बाद डॉपलर कब मैम कराओगे? हाँ, Doppler कब? ultrasound also fortnightly if everything is ठीक है, Ma'am, वो डिपेंड्स ऑन द डॉपलर the- अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आल्सो। Till what time you will take the ma'am, I pregnancy will test? at every visit I will hello क्या? हाँ, बोलो प्लीज। हेलो। ma'am, at every visit after 28 weeks I will go artery Doppler, the renal function test, blood pressure and urine detail report. इन चीजों को सीक्वेंस में क्यों नहीं बोलती हो? पहले आप ब्लड हाँ, प्रेशर बोलो, फिर blood यूरिन pressure, बोलो। urine detail हाँ, report, renal function test, इसकी umbilical इंटेंसिटी के artery हिसाब से Doppler बोलो and ना। the growth scan. आपकी नॉलेज से ज्यादा इस वक्त आपकी अप्रोच मैटर करिए। नॉलेज का इम्तिहान आप पास करके वहां बैठे हुए हो, नॉलेज पे आपको शायद पास फेल नहीं होगे, आपका अप्रोच टुवर्ड्स द पेशेंट ही मैटर करेगा। आपको, आप उसमें से क्या इंपॉर्टेंट बात पिक कर रहे हो क्लिनिकली, और उसको क्लिनिकली कैसे अप्रोच कर रहे हो, आप किस तरह से उस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, दिस इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। आप ऐसे ही नहीं बस बोल सकते हो। आप बोलो कि अब 28 वीक्स पे वो मेरे पास आई है, आई वुड लाइक टू रीअसेस हर कंडीशन। उसका मैं दोबारा से हिस्ट्री में सिम्टम्स पूछूंगी, वो 4 आउट ऑफ 11 वाले सिम्टम्स मैं दोबारा से उससे पूछूंगी। उसके बाद मैं उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स पूछूंगी, उसके एडीमा के सिम्टम्स और उसके एग्जामिनेशन करूंगी रिगार्डिंग, स्पेशली रिगार्डिंग हर ब्लड प्रेशर एंड एडीमा और हर फंडल हाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके ये आपने सिर्फ फोकस्ड पॉइंट्स बोलने हैं 28 वीक्स पे। उसके बाद आप बोलोगे कि इन्वेस्टिगेशंस में आई वुड लाइक टू गेट हर दिस थिंग इन स्पेसिफिकली डन। जैसे RFTs मैं जरूर उसके रिपीट कराऊंगी, या यूरिन और RFTs आप उसके रिपीट कराओगे, उसके आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, बेस लाइन भी कराओगे, और आप डॉपलर भी 28 वीक्स पे कराओगे। और फिर इफ नीडेड तो फिर उसका 2 वीकली आप उसका ग्रोथ स्कैन्स भी कराओगे। और उसके बाद आप अगर अगर ग्रोथ वगैरह सारी ठीक आ रही है तो बस आप फिर 28 वीक्स और 32 वीक्स पे आप उसका डॉपलर कराओगे। हर एक में ग्रोथ स्कैन्स नहीं कराने शुरू हो जाते अगर फंडल हाइट को वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है तो। इस तरीके से आपने जवाब देने, मतलब हैपेजिट तरीके से। आई नो आप Ma'am, at यू नो द 20 आंसर एंड यू हैव गुड नॉलेज, बट वही बात है कि जवाब देने का तरीका नहीं ठीक। जी Ma'am, at 28 week, I will again reassess my patient. I will do I will ask about the history points and I will do the examination again. Then I will do the certain investigation. I will check the blood pressure and the urine and the protein renal function test and umbilical artery Doppler Good. and the growth scan. ठीक है। सो कब तक लेके जाओगे? फॉर एग्जाम्पल अब 36 वीक्स पे आ गई है, और फिर आगे क्या प्लान? Ma'am, at 36 weeks on the visit, I will again reassess my patient and I will again check the condition about the condition of SLE and all the इन blood हिस्ट्री, pressure. यानी सिम्टम्स और साइंस को मैं रूल आउट करूंगी रिगार्डिंग SLE एज वेल एज obstetrical एग्जामिनेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी। ठीक है, आगे? And then I will liaison with the physician at 36 weeks to end the anesthetic, and I will discuss with the patient about the mode of delivery and then I will plan
if the patient is stable and has her SLE is controlled, so I will plan induction at 37 weeks. ठीक है, डेक्सा कवर की जरूरत में बात कर लो, उसके बाद आप उसकी वही ओवरऑल कंडीशन, अगर एवरीथिंग इज फॉर एग्जांपल स्टेबल, लैब्स भी उसकी ठीक है, बेशक प्रोटीन यूरिया थोड़ा पॉजिटिव भी है, बट बिकॉज ऑफ द रीनल डिजीज एंड नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटीन यूरिया, बट स्टिल शी इज हैविंग द रीनल डिजीज, तो हम इसको बहुत आगे तक तो लेके नहीं जाएंगे। कहीं पे भी इसकी एग्जैक्ट जेस्टेशन नहीं लिखी कि आपने कब करना है। ऑफ कोर्स प्री एक्लेम्पिया को तो आप सिर्फ माइल्ड और सिवियर के हिसाब से अर्ली करोगे, बट इसके अंदर आई थिंक 37 इज ओके, बट अगर 38 कर लो तो बिकॉज पेशेंट इज स्टेबल, उसकी डिजीज कंट्रोल्ड है, कोई वो नहीं है, तो आई थिंक 37 इज ऑल्सो बिट अर्ली, क्योंकि आई डोंट फाइंड एनी फॉग आर्टिकल और एनी स्टडी जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर जेस्टेशन दी हो। तो 38 विच मीन्स 37 कंप्लीट वीक्स विच इज 38 वीक्स, तो एटलीस्ट 38 तक हम कर लें तो। और यस देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी, तो अगर सब कुछ ठीक है एंड ऑब्स्टेट्रिकली शी इज ऑल राइट एंड देयर इज नो IUGR, तो फिर आप प्रेफरेबली उसको वो करोगे। बेशक शी वाज टेकिंग प्रेडनिसोलोन, उसे डेक्सा कवर की आपने बात करनी है, ठीक है। सो गुड। Ma'am, सो फिर so इसके अंदर वही नॉर्मल लेबर और एनाल्जेसिया मोर लेस सेम ही होगा जो हम किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट का ड्यूरिंग लेबर करते हैं, और फिर डिलीवरी का एंड देन आफ्टर दैट कॉन्ट्रासेप्शन। active जीता form. बिंदा, ठीक है। Ma'am, what तो contraception? Okay, आप बताओ, ma'am, ma'am, it is according to the SLE में कोई this भी to the कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, okay, okay. ठीक है ना। इसके अंदर IUCD और ऑफ कोर्स इम्प्लानॉन तो है ही सेफ। combined oral contraceptives भी I don't think they are absolute, they are not absolute contraindicated for SLE, the combined oral contraceptive pills। relative contraindication में भी SLE नहीं है टेबल में, देख Ma'am, लेना। मैम थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस मैडम अगर मैम एप्ला पॉजिटिव हो ना तो फिर है, अदरवाइज नहीं है। तो OCT वैसे ही है ना, वो तो any जी patient who has got antiphospholipid is contraindicated for this, तो खाली SLE के अंदर नहीं है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फीडिंग जी। सो आई थिंक हमने एक थ्योरेटिकल मोरलेस, इसमें मेडिसिन के नाम आने चाहिए 4 आउट ऑफ 11, वो जो कैटेगरीज हैं फॉर दिस, ये पूरा टॉक आर्टिकल है ब्यूटीफुल, दे हैव मेड ब्यूटीफुल टेबल्स, इसके अंदर मेडिसिन भी हैं, कौन सी टेरेटोजेनिक है कौन सी नहीं है, और बिल बहुत ही मजेदार प्री कंसेप्शन लिखा है, ड्यूरिंग एंटीनेटल क्या करना है, ड्यूरिंग लेबर क्या करना है, पोस्ट लेबर क्या करना है, पूरा का पूरा वो टॉक आर्टिकल है, सिर्फ वही पढ़ के चले जाओ तो आपका टॉपिक पूरा तैयार हो जाए। वेरी गुड, किसी ने टॉक आर्टिकल शेयर भी कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दिया शेयर, तो अच्छी बात है, ठीक है। सो गुड। और कोई बात, कोई कमेंट, कोई चीज, कोई क्वेश्चन? ओवरऑल इट वाज गुड, तबिंदा योर स्पीच इज गुड, क्लैरिटी वो सब है, यू नो नॉलेज है, बट वही बात है कि खाली जो नॉलेज है ना, उसका इम्तिहान आप पास कर आए हो, अब है कि हाउ आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनी क्वेश्चन, आपको उस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस का पता है कि ये प्री कंसेप्शन है, तो हाउ सीरियस यू आर अबाउट द प्री कंसेप्शन। हर चीज बात ही प्रिवेंशन की है, ट्रीटमेंट की तो बात ही नहीं है, मेडिसिन में बात ही प्रिवेंशन होनी चाहिए। सो वो प्री कंसेप्शन में ही होगा ही तो ठीक रहेगा। सो आपने तो उस तरीके से अपनी बस सिर्फ हाउ यू, आप जवाब देना शुरू कैसे करते हो ये बहुत मैटर करता है, वो तरीका अपना जरा देख लेना। मैडम अगर पेशेंट मीथो पे हो और वो प्रेगनेंसी में आई है और कह रही है कि मैंने तो मीथोट्रेक्सेट बंद ही नहीं की और मेरी तो प्रेगनेंसी भी हो गई है, तो फिर क्या करेंगे? इट इज नॉट गुड। टर्मिनेशन तो आई डोंट थिंक कि कहीं पे लिखा हुआ है, आप उसे काउंसल करोगे और विल टेक कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स विल स्टॉप मीथोट्रेक्सेट, और फिर आगे देख लेंगे नॉर्मली स्कैन वगैरह करा के, ठीक है। जी मैडम। चलो गुड।